रेडियो क्विज की उर्दू नशियात से आप नित नए प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और आप क्या सुनना चाहते हैं? अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए। खतूत लिखने के लिए हमारा पता है रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स नंबर 397 यानी 397, सफ़ात 13004 कुवैत। मोबाइल के जरिए SMS इस नंबर पर कीजिए 99958246 99958246। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@media.gov.kw। फेसबुक पर www.facebook.com/RK उर्दू पर आकर हमारे दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाइए। और फेसबुक पर ही हमारे पेज रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस को लाइक करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात। रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में।
السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام آج کے مہمان میں آپ کی میزبان ندا مرزا، ساتھی اناؤنسر رضیہ اشرف، ساؤنڈ انجینئر برکت خان اور ابو بکر پایولی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اب روز روز دیکھنے والا کہاں سے لائیں؟ تو جناب روز روز دیکھنے والا ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ جملہ کیوں کہا گیا اور ہمارے مہمان کے زبان سے یہ جملہ کیوں ادا ہوا کا سوچ کر جنوبی کوریا سے نکلنے والا ایک جوڑا جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ زندگی نہیں ہے، اور پھر وہ نکلے سفر پہ اور دنیا کی سیر کرنے نکلے۔ پاکستانی نژاد پارک ہیومن جو کئی سالوں سے جنوبی کوریا میں مقیم ہے، اور صحت کے مسئلے کے بعد ان کے زبان سے یہ ادا ہوا یہ زندگی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ پلان کیا کہ کیوں نہ ورلڈ ٹور پہ نکلا جائے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے اسٹوڈیو میں پارک اور شین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، آپ نے بہت ہمارا اچھا تعارف کرایا ہے، اور میں اپنے سارے سننے والوں کو اور ناظرین کو دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں کویت ریڈیو اور جو ہے اردو سروس والوں کو بھی میں بہت بہت شکریہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ بہت شکریہ پارک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمت نہیں ہارتے زندگی سے اور ان کو جستجو رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ تو آج ہم پارک اور شین سے کچھ گفتگو کریں گے، اور یقیناً آپ کو ان کی کہانی سن کر بہت دلچسپی پیدا ہوگی اور ایک موٹیویشن تو ضرور ملے گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا گھومنے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے پارک صاحب آپ بتائیے گا بائی پروفیشن آپ کیا ہیں؟ جی ہمارا کاروبار ہے ساؤتھ کوریا کے اندر ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک کا۔ اور ویسے آپ کس ملک سے ہیں؟ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آئی واز بورن ان پاکستان، میرے مدر فادر پاکستانی ہیں، اور مجھے کوریا کے اندر 33 ایئرس ہو گئے۔ اوہ مائی گاڈ، کیا بات ہے، 33 ایئرس کوریا میں ہو گئے آپ کو۔ تو آپ کو تو کورین لینگویج بہت اچھی آتی ہوگی۔ جی میں کورین بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اپنی اہلیہ کا تعارف کرائیے ذرا پارک صاحب۔ ہاں، یہ میری وائف ہیں، شین حسن ان کا نام ہے، اور یہ بہت اچھی ہیں، اور یہ اردو ابھی سیکھ رہی ہیں۔ ان کو اردو اتنی نہیں آتی ہے، لیکن یہ چائنیز بول سکتی ہیں تھوڑی بہت، اور کورین میں بات کر سکتی ہیں۔ ارے واہ، تو شین کو کوئی ایک آدھ لفظ اردو کے آتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جس طرح یہ کہہ سکتی ہیں السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ شین، مائک اوور ٹو یو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تھینک یو شین، اٹ واز نائس لسننگ ٹو شین، اور انہوں نے اردو بولنے کی کوشش کی، اردو سیکھ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے آج ہم نے اردو بولنے والوں کو اور دنیا گھومنے والوں کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر لیا ہے۔ تو پارک صاحب یہ بتائیے کہ 5 مہینے پہلے آپ نے پلان کیا ورلڈ ٹور پہ نکلنے کے لیے، از اٹ رائٹ؟ جی 6 مہینے پہلے، سوری 6 مہینے پہلے ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا۔ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہم نے پلان کیا تھا کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور میرے ہارٹ کے 2 آپریشن ہو چکے تھے 1.5 سال کے اندر۔ تو پھر میں نے یہ کہا یہ روپیہ پیسہ یہ کاروبار سب ادھر ہی رہ جانا ہے، کیوں نہ ہم دنیا کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں جا کے، اور کیا ہے دنیا کا رنگ۔ تو ہم لوگ ابھی دنیا کے اندر نکلے ہوئے ہیں، اور کویت میں ہمارا یہ 13ویں کنٹری ہے، اور 6 ماہ ہو چکے ہیں ہمیں وزٹ کرتے ہوئے۔ اچھا پارک صاحب، کون کون سی کنٹریز اب تک آپ گھوم چکے ہیں؟ ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے۔ ہاں، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا 2023 5ویں مہینے کی 2 تاریخ کو کوریا سے بائی شپ، کیونکہ بائی روڈ کوئی بھی ملک نہیں رکھتا، صرف نارتھ کوریا ہے، وہاں سے وہ راستہ نہیں دیتے ہیں ساؤتھ کوریا کو۔ تو ہم بائی شپ گئے تھے رشیا بلادیواستو، وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، ویری نائس۔ تو جی بولیے۔ اور بلادیواستو سے پھر ہم لوگ چلے گئے تھے منگولیا اور قازقستان۔ ارے واہ، تو آپ کو کیسا لگا جب آپ نے ابتدا کی سفر کی، جب آپ فرسٹ ٹائم نکلے سفر پہ بائی کار اپنی گاڑی لے کے؟ اور ماشاءاللہ سے آپ کی تو گاڑی بھی بہت بڑی ہیوج گاڑی ہے جس میں آپ آرام بھی فرما سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی مطلب پریشانی ہوئی، گھبرائے شروع میں جب پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا تو؟ ہاں، بیسیکلی اصل میں تھوڑا سا ایک آدمی جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے وہاں پر ڈرائیو کروں گا۔ میں نے اس سے پہلے صرف کوریا میں ہی ڈرائیو کی تھی، میں نے پاکستان بھی جاتا تھا، میں ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا، بڑی خطرناک، مجھے ڈر لگتا تھا۔ اچھا۔ ہاں، لیکن جب میری صحت
इस तरह हुई, मुझे 2 अटैक हो गए। तो मैंने बोला दुनिया मतलब मेरे लिए तो अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो फिर ये सब किस तरीके से होगा और कौन करेगा ड्राइव। तो फिर मैंने हिम्मत करी। जब मैंने बुलादी वास्तव में पहली दफ़ा ड्राइव की तो यकीन करें कि मैं थोड़ा सा, मेरी टांगें कांप रही थी 5 मिनट तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की और फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं बिल्कुल आराम से पूरी दुनिया में जहाँ भी जाऊँ आराम से ड्राइव कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने अपने हार्ट इश्यू के बारे में बात की है, उसमें आपने आपके बहुत सारी तहरीरों में भी ये नोटिस हुआ है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम था। इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या हुआ आपको। हाँ, इससे पहले आप यकीन कीजिए ना मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी। हम लोग कोरिया के अंदर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 14-14 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं और कोई छुट्टी नहीं करते हैं हम लोग। हफ्ता इतवार हमारा कोई ईद बकरीद कोई छुट्टी नहीं है। हमारा काम इस तरीके से है, लाइव स्टॉक का और एग्रीकल्चर का। अच्छा। तो जब ये मेरा ना मुझे कोई ब्लड प्रेशर है कुछ भी नहीं था और अचानक मेरा सांस फूलने लगा और मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकता था, मैं गिर गया। तो फिर हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा इनको हार्ट अटैक हुआ है और आप इनका ऑपरेशन कराइए। फौरन ऑपरेशन कराया, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे दोबारा प्रॉब्लम हुई। तो फिर 2 ऑपरेशन हो चुके हैं 1.5 साल में मेरे। 1.5 साल में 2 ऑपरेशन। ओह माय गॉड, आप बहुत हिम्मत के माशाल्लाह से आपने। और फिर उसके बाद आपने सोचा ये जिंदगी नहीं है, बस इतने लंबे सफर पे, दुनिया के सफर पे निकल आया आप। हाँ, जब आदमी को सामने कुछ भी नज़र नहीं आए तो वो कहता है कि मैंने कुछ करना है। अपने अंदर मैंने ठान लिया था कि मैं 80 कंट्रियाँ करूँगा। हमसे हमारे साथ 2 टीमें और आई थी, उन्होंने 1-1 साल का बाई रोड का प्लान बनाया था, लेकिन वो 4-4 महीने के बाद दोबारा वापस कोरिया में चले गए। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। और आप अभी तक सफर पे हैं? हाँ, ये जब इंटरनेशनल रूट के ऊपर निकलते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स आपके सामने खड़ी होती हैं जो आपका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझे देख लीजिए, मैंने हिम्मत की है। तो जो हिम्मत करता है कामयाबी उसी के कदम चूमती है। वाह, क्या बात कही, जो हिम्मत करता है कामयाबी उसी के कदम चूमती है। बहुत ही जबरदस्त बात की। अच्छा पार्क साहब, ये बताइए कि आपने 2 साल के अंदर 80 कंट्रियों को कवर करने का प्लान किया है अभी, और अभी तक इनमें से कितनी कंट्रीज आप निकल चुके हैं 6 महीने के अंदर अंदर? हाँ, असल में 13 कंट्रियाँ ये कुछ भी नहीं है 6 महीने के अंदर। बेसिकली हुआ ये था कि हमारी गाड़ी का जो टायर था वो ब्लास्ट हो गया, फट गया और गाड़ी उलट गई। और जब गाड़ी उलट गई तो इसके पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ कोरिया के अंदर ही मिलते हैं। ये अभी लेटेस्ट मॉडल आया है दुनिया के अंदर, इसकी जो है वो टेक्नोलॉजी वो किसी को अभी पता नहीं है। तो वो सही करने में बहुत टाइम लग गया, 1.5 महीने से ज़्यादा इसको गाड़ी को सही करने में लग गया। तो हम ज़्यादा मतलब सफ़र नहीं कर सके, गाड़ी वहीं खड़ी रही थी। तो ये प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हम ज्यादा नहीं जा सके। आगे जो कंट्रियां हैं वो छोटी छोटी कंट्रियां, जैसे यूरोप की 25-26 कंट्रियां, वो छोटी छोटी सी हैं, वो जरा जल्दी हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा। तो पार्क साहब, आपकी गाड़ी उलट गई, टायर का ब्लास्ट हो गया और आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आई? आप और हार्ट पेशेंट भी हैं आप, तो किसी ने मदद की? किस तरीके से आपने उसको रेस्क्यू किया अपने इस एक्सीडेंट को? हाँ, हुआ ये था कि हम काजाकिस्तान में जा रहे थे और गाड़ी की स्पीड होगी तकरीबन 80 और हाईवे के ऊपर थे, बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे, बहुत खतरनाक था और गर्मी थी थोड़ी, रोड मतलब गर्म हो जाते हैं। तो वो पुलिस ने बताया कि इसके अंदर हवा थोड़ी सी ज्यादा थी जिसकी वजह से ये टायर, हमने उनको बताया ये टायर बिल्कुल हम बहुत आला क्वालिटी के डलवा कर आए थे, ये क्या हुआ है। तो रोड थोड़ा सा खराब भी था तो गाड़ी उलट गई। तो किस तरीके से कहते हैं कि फरिश्ते मदद करते हैं। यकीन जानिए कि ऐसे सामने से मुखालिफ सिमत में जो गाड़ियां जा रही थी उन्होंने ब्रेक लगाए और हमारी गाड़ी को उन्होंने सब ने मिलकर धक्का मार के उसको सीधा कर दिया। पुलिस आ गई विदिन 2 and 3 मिनट्स में और उन्होंने एक ट्रक को कहा कि इनकी गाड़ी को जल्दी से साइड में लगाओ ताकि ये बीच दरमियान के अंदर हमारी गाड़ी ये उल्टी हुई भी पड़ी हुई थी, लेकिन हमें किसी को चोट नहीं लगी। ये बहुत अच्छा हुआ। और गाड़ी को जब सीधा किया तो गाड़ी को हल्की फुल्की से खराशें आई हुई थी और जो भी देखता था वो ये कहता था ये गाड़ी उल्टी नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी खुरचें आई हुई थी। अच्छा। तो मतलब फरिश्तों ने, मैंने अभी आपको कहा है कि फरिश्ते मदद करते हैं, तो इस तरीके से बेशक। वो कहते हैं ना सामीन कि एक नजर का फसाना है दुनिया, एक नजर का फसाना है दुनिया, 100 कहानी है
ایک کہانی سے. تو یہ بھی ایک کہانی ہے اور اس کے اندر کتنی کہانیاں ہیں یہ آج ہمیں پارک اور شین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ پارک اور شین دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ دونوں ورلڈ ٹور پہ نکلے ہیں. اور جیسا کہ پارک صاحب نے کہا کہ ان کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اور 2 بار ان کا آپریشن بھی ہو چکا ہے اور گاڑی چلانے سے وہ ڈرتے تھے اور انہوں نے اس ڈر پر اپنے قابو پایا اور انہوں نے گاڑی چلائی. اور جب پہلی بار گاڑی چلائی تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کے بعد پھر اب ماشاءاللہ سے وہ مستقل سفر پہ ہیں اور دنیا کے سفر پہ. یہی ہمت چاہیے آگے بڑھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. جی پارک صاحب آپ اتنی مشکل میں اتنی اپنی صحت کے حوالے سے نکلے تو کبھی یہ نہیں فیل ہوتا کہ میں نے یہ کیوں سٹانس اٹھا لیا ورلڈ ٹور پہ نکلنے کا, اس سے بہتر تھا میں گھر میں رہتا؟ کبھی ایسا خیال نہیں آیا؟ ہاں, جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ گھر پہ نہیں بیٹھتے ہیں, وہ باہر آتے ہیں. ارے واہ کیا بات کہی ہے, جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ گھر پہ نہیں بیٹھتے وہ باہر آتے ہیں. بہت زبردست. تو جناب یہ بتائیے بلیلا کیا ہے؟ ہاں, بلیلا ایک چھوٹی شرارتی بچی کا نام ہے. اچھا. پاکستان میں انڈیا میں چھوٹی سی فراق پہنی ہوئی ہوتی ہے اور کھیلتی ہوئی 2 چٹیاں اس کی ہوتی ہیں اور ہلتی جلتی جاتی ہے گانا گاتی ہوئی. تو ہماری گاڑی کو میں نے وہ جب کریکٹر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا ہماری گاڑی کیونکہ بڑی گاڑی ہے, کیمپنگ وین ہے, ہمارا پورا گھر رکھا ہوا ہے, اس کا فریم چھوٹا ہے اور باڈی بڑی ہے, تو وہ جب چلتی ہے ہلکا سا بھی گڈھا آ جاتا ہے وہ ہلتی ہے اس طرح نا, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈانس کر رہی ہے. او کیوٹ. تو اس طریقے سے ہماری تو آپ نے اس بچی کو اس ہلتی جلتی ناچتی بچی کا نام جو بلیلا تھا آپ نے اپنی گاڑی کو وہ نام دے دیا. تو آپ کی بلیلا اب ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے اور بڑی شرارتیں کرتے ہوئے اور روڈوں پر جاتی ہے. ارے واہ کیا بات ہے. جناب بلیلا بھی شرارتی کرتی ہے, صحیح ہے. تو اچھا اب مڈل ایسٹ میں اب ابھی کویت میں آ گئے, تشریف لے آئے ہیں, تو یہاں سے اب کہاں آگے آپ کا سفر ہے؟ انشاءاللہ ہم یہاں سے جو ہے سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے بحرین اور قطر. اچھا, سعودی عرب میں آپ نے اپنے پلان میں لکھا ہے آپ کا عمرہ کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ضرور عمرہ کریں گے, مکہ منورہ جائیں گے اور مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, انشاءاللہ ضرور. اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, اپنی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہیلتھ کے لیے, یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سمندر کے ذریعے آپ نے جنوبی کوریا سے روس کا سفر کیا, تو اس میں کوئی آپ کو پریشانی پیش آئی اور یہ گاڑی کیسے ارینج کیا آپ نے پھر؟ ہاں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب گاڑی کو شپنگ کراتے ہیں تو پیپر ڈاکومنٹیشن بہت ساری ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلنڈر اس میں سے نکال دیجئے. اب جیسے کہ ہمارا فریج نہیں چل رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے گیس سلنڈر نکال دیا. اب گیس سلنڈر نکال دیا, اس کے جو نوزل ہیں اور اس کی جو وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا, تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا منی ایک فریج اپنے پاس رکھا ہوا, اس کے اندر برف ڈال کے پھر ہم چلتے ہیں. تو اس طریقے سے گزارا کرنا ہے. تو شپنگ کے اندر تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. شپنگ آج کل بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے شپنگ سے باہر گاڑی کو نکالنے کے لیے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم نے پورے کیے ہیں اور آج ہم یہاں کویت میں پہنچ چکے ہیں. کویت کا سفر کیسا لگا اور کون کون سے اب تک آپ ڈیسٹینیشنز پہ جا چکے ہیں یہاں پر؟ ہاں, کویت اصل میں بہت خوبصورت ملک ہے اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری گاڑی کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ فوٹوگراف لیتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آج دن تک مطلب اس طریقے سے گاڑی پر آنا اتنا ایزی نہیں ہے کویت کے اندر. بالکل. جی. اور ہم ابھی یہاں پر جو ہے کویت کے اندر کویت ٹاور میں جا چکے ہیں اور جو یہاں کی جامع مسجد ہے گرینڈ ماسک, وہاں مسجد الکبیر. جی مسجد الکبیر. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آرٹ گیلری ہے, یہاں پر آج وہاں پر پینٹنگز کے جو آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اور کویت کے, اور سفیر پاکستان عزت مآب وہ بھی تشریف فرما تھے وہاں پر, اور ایکسیلنسیز بہت ساری وہاں پر تشریف فرما تھیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سارا پیار دیا ہے اور ہمارے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافس لیے ہیں. اور بہت ساری نیوز چینلز وہاں پر آئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کی نیوز بنائیں گے. تو بہت پیار کیا ہے. کویت کے لوگ بہت پیارے ہیں اور یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے. ارے واہ. تو یہاں کا جو ٹریڈیشن ہے, کلچر ہے کویت کا, اس سے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان چند دنوں میں. کتنے دن ہو گئے آپ کو ویسے کویت میں؟ ہاں, ہمیں 6 روز ہیں یہاں پر کویت کے اندر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے کوریا میں گھوم رہے ہیں. اسی طریقے سے بلڈنگ ہے. میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا جیسے ہمارا پوسان ایک بڑا سٹی ہے, وہاں پر ہیوندے ایک جگہ ہے, اسی طریقے سے روڈ بنے ہوئے ہیں اور سی سائڈ ہے, بالکل سیم. ہمیں اس طرح نہیں فیل ہو رہا کہ ہم کہیں اور گھوم رہے ہیں کسی غیر ملک میں, ہم ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے ہم کوریا میں گھوم رہے ہیں. ارے واہ. تو یہاں کا کلچر اور ٹریڈیشن کیسا لگا آپ کو؟ ٹوٹلی عربک. ہاں,
अरबी कल्चर क्योंकि इस्लामिक, क्योंकि हमने बचपन से सीखा हुआ है, देखा हुआ है, तो इतना हमें फील नहीं हो रहा कि हम जो है वो उसी तरीके से अपना जैसा माहौल लग रहा है. बिल्कुल सही बात है. तो ये बताइए कि यहाँ के जितने भी डेस्टिनेशंस है, जैसे समंदर है या और किसी जगह पर आप गए हों घूमने के लिए, और आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ के वेदर के हवाले से, क्योंकि ठंड तो अभी तक इतनी ज्यादा यहाँ नहीं आई है. जी, यहाँ पर ठंड नहीं आई है और बहुत प्यारा मौसम है. जो मुझे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर सूरज बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है. और आपको ये बताऊं, आप लोगों के लिए मैं शायद एक बिल्कुल आपकी नॉलेज के लिए, इजाफे के लिए, कि रशिया के अंदर मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर सूरज बहुत देर से गुरूब होता है, हालांकि बहुत ठंडा मुल्क है. जब हम वहाँ 5वें और 6ठे महीने की आपको बात बता रहा हूँ, तो सर्दी होती है उस टाइम वहाँ पर, तो लेकिन रात के 10 बजे तक उजाला था वहाँ पर. ये मेरे लिए एक हैरान कुन बात है. और दूसरी यहाँ पर अब मुझे हैरान कुन बात कुवैत में, कि यहाँ पर सूरज बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है. अरे वाह. ये तो अच्छा. कुवैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? हाँ, कुवैत के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और जहाँ पर भी जाएं वो पानी पेश करते हैं, चाय पेश करते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं. ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करी हैं. वाह, बहुत अच्छी बात है. अच्छा पार्क, ये बताइए, आपकी वाइफ आपके साथ है. वाइफ तो वैसे ही लाइफ पार्टनर और आपके मतलब इट्स ऑल लाइक लाइफ पार्टनर भी हैं आपकी, सब कुछ ही होती है वाइफ. तो आपके साथ सफर में वो साथ हैं, तो आपको कैसा लगता है? एक फ्रेंडली माहौल है या आपको वो हेल्प भी करती हैं, साथ साथ आपको काफी सपोर्ट करती हैं इस चीज में? हाँ, ये मेरा माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी हैं. और इन्होंने जब मेरे से शादी करी तो मैंने इनको बताया कि हमारा इस्लामी कल्चर है, अगर आप पसंद करेंगी शादी करना तो सबसे पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा. तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया. फिर क्योंकि इतनी जल्दी हमारी शादी हुई थी तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा रीड करूंगी पहले इस्लाम को. फिर इन्होंने इस्लाम को सीखा 2 साल तक. फिर उसके बाद इन्होंने नमाज शुरू करी है. अब ये कुल हु वल्लाहु अहद इनको पूरी आती है, अलहम शरीफ इनको आती है. ये नमाज पढ़ती हैं मेरे साथ 5 वक्त की, रमज़ान के रोज़े रखती हैं, और गाड़ी चलाने में मेरा साथ इस तरीके से देती हैं कि जब मैं गाड़ी को, क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी है और बहुत ऊंची है, तो पीछे से ये देखती हैं और मुझे बताती हैं लेफ्ट पे लगाइए, राइट पे लगाइए. अच्छा, तो ये मेरा और मेरी पूरी गाइड करती हैं. और मेरी दवाइयों का ख्याल रखती हैं कि ये चीज़ आप कोला मत पियो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. तो जूस हम 100% जो है अनार का, ये मुझे बना कर देती हैं. और मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छी हैं. Okay, Sheen, you would like to say something about your husband? 사랑한다고. I love you. I love you कह रही है. चलो that's nice, क्योंकि शीन अभी उर्दू सीख रही हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त लाइव प्रोग्राम में अपने शौहर के लिए एक मोहब्बत का छोटा सा एक जुमला कहा जो कि हमें अच्छा लगा. और ये बताइए कि जनाब, कुवैत से आप अब निकलेंगे मिडल ईस्ट की तरफ, बाकी कंट्रीज में भी आप, तो सबसे पहले आप सऊदी अरब जाएंगे, फिर उसके बाद आपका बहरीन का इरादा है. टर्की के बारे में आपने काफी कुछ कहा है अपने इंटरव्यूज के अंदर. उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें कि टर्की में आपका सफर कैसा रहा? हाँ, टर्की असल में बहुत बड़ा मुल्क है और वो एशिया और यूरोप दोनों को बिलोंग करता है. तो वहाँ पर मल्टी नेशनल जो है वो मुझे कल्चर देखने को मिला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर एशियंस कल्चर भी है और यूरोपियन कल्चर्स भी है. तो वहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, ब्लू मॉस्क हम देख कर आए हैं, आया सोफिया हम गए हैं, और वहाँ पर जितने भी मतलब सी साइट हैं, जो मशहूर जगहें, उनके खाने, उनकी न्यूज़ हमारी बहुत सारी बनी हैं. बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छा वेदर है वहाँ पर. बहुत अच्छा लगा है और हम बड़ा सेफली मतलब वहाँ पर हमने सफ़र किया है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनी. वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो पार्क, हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि कुवैत के बाद और आगे मजीद आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं घूमने के हवाले से? हाँ, बकाया जो हैं हमने ये टोटल प्लान किया था कि हम तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, और पूरा एशिया घूमेंगे, पूरा मिडल ईस्ट घूमेंगे, और अफ्रीका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, और उसके बाद जो है हम ऑस्ट्रेलिया रीजन में जाएंगे. तो ये सारा हमने जो प्रोग्राम किया था हम उसी हिसाब से जा रहे हैं. अगर मेरी जो है सेहत ने साथ दिया और कोई बड़ी हर्डल्स नहीं आई जो मैं अबूर नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं तो मैं पूरा अल्लाह के ऊपर
भरोसा है और कॉन्फिडेंस से इंशाल्लाह हम करेंगे और आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे. जरूर इंशाल्लाह. पारिक, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को. कौन कौन है आपकी फैमिली में, वाइफ के अलावा? जी, हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी है माशाल्लाह. पाकिस्तान के अंदर मुझ समेत 5 भाई हैं और 7 सिस्टर हैं हमारी. अच्छा. और वालिद साहब मेरे फोत हो गए, उनको भी 2 अटैक हुए थे. तीसरे अटैक में वो इस दुनिया से चले गए थे. और मेरी वालदा हयात हैं माशाल्लाह और वो मेरे लिए दुआ गो रहती हैं हमेशा. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो पार्क, ये बताइए कि है ना, कभी मायूसी नहीं होती कि है ना मुझे क्यों हार्ट अटैक हो गया या मुझे ऐसी क्यों सेहत के हवाले से तकलीफ मिली? जी हाँ, उस टाइम मेरे आंसू नहीं यार. लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आई विल डू इट. इंशाल्लाह यू विल डू इट. और आपने इतनी हिम्मत की है अपनी तबीयत के खराबी के बावजूद, और आप सफर पे निकले हैं और आप देखिएगा पूरी दुनिया घूमेंगे. अच्छा, ये बताएं, दुनिया घूमने के बाद क्या प्लान है आपका? हाँ, दुनिया घूमने के बाद मेरा ये है कि हमें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं और इतने गिफ्ट दिए हैं और इतनी न्यूज़ें बनी हैं. और जब हम कोरिया में जाएंगे तो हमारे तकरीबन 50 चैनल्स इंटरव्यूज़ करेंगे. वाओ. तो वो एक मेरे लिए यादगार लम्हे हैं जो मैं कभी नहीं भुला सकता. और बस मैं उनको देखकर खुश होता रहूँगा. और आप सब लोग हमारे साथ होंगे. मैं आपके लिए दुआ कहूँगा, आप लोग भी मेरी सेहत के लिए दुआ कहो. बिल्कुल, जरूर हम दुआ करेंगे. बिल्कुल. अच्छा पार्क, ये बताइए कि कोई इरादा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का? जी इंशाल्लाह. मैंने वहाँ राब्ता किया था और मैंने जो है कजाकिस्तान में कोशिश करी थी कि मैं वहाँ पर रिकॉर्ड बनाऊं. लेकिन वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने थोड़ा सा मुझे जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स अगर देते तो मैं लाजमी करता. और इंशाल्लाह किसी और मुल्क में मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली ज़रूर बना सकता हूँ. वाह, बहुत. कहते हैं ना पार्क साहब की जुबानी, मुझे एक शेर याद आ गया, देखो दुनिया है दिल है, देखो दुनिया है दिल है, अपनी अपनी मंजिल है. तो यकीनन पार्क साहब की ये जो ख्वाहिश है, ये जो दुनिया देखने की इनकी जुस्तजू है, उम्मीद करते हैं कि इनकी मंजिल आसान से आसान तर हो और ये जो चाहते हैं वो इनको सबको, जो भी चाहते हैं इनको मिले. अच्छा पार्क, ये बताइए कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो आपकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश, वैसे तो ख्वाहिशें बेशुमार हैं, लेकिन आदमी अगर कनात पसंद हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है. तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी आसान ज़िंदगी गुजारूंगा. क्यों मैं ख्वाहिशों के पीछे अपने आप को बांध के रखूं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो जनाब ये बताइए कि आपकी वो कौन सी आदत है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद? हाँ, मैं असल में रेस्ट करना बहुत कम पसंद करता हूँ. मेरी बीवी बस मुझे यही कहती है, आप बहुत कम सोते हो, आपकी सेहत की वजह से. ये चीज़ है, मैं काम जब तक ख़त्म नहीं होता, चाहे रात के 2 बज जाएं, मैं कोरियंस आप किसी से भी पूछ लीजिए, दुनिया के अंदर सबसे मेहनती कौम है, दुनिया के अंदर सबसे फास्टर ग्रोथ कंट्री कोरिया है. वाओ, क्या बात है. तो जनाब अब चलेंगे अपने रैपिड फायर सेक्शन की तरफ और पार्क से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ लफ्ज उनको देंगे और जो फर्स्ट थॉट उनके माइंड में आएगा देखते हैं कि वो क्या होता है. पार्क, एक रैपिड फायर सेक्शन होता है हमारा, एक गेम की तरीके से होता है. मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपके पास जो भी फर्स्ट थॉट आए आप इधर एक वर्ड में उसको रिप्लाई करेंगे या फिर एक सेंटेंस में. ठीक है? दुनिया. दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है. वाह. वाइफ. शीन. शीन मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है. वाओ. मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है. जबरदस्त. दिल. दिल से अच्छी और पाक जगह कोई नहीं. वाओ. फूल. फूल तो सिर्फ गुलाब का ही होता है. क्या बात है. जिंदगी. जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है, इसकी हिफाजत कीजिए. अरे वाह. सेहत. सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. सफर. ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग. आई एम लवर ट्रैवलिंग. म्यूजिक. म्यूजिक मैं बहुत पसंद करता हूँ. किस तरह की म्यूजिक पसंद करते हैं पार्क? हल्का जो है वो पॉप म्यूजिक, ज्यादा पॉप म्यूजिक में पसंद नहीं करता, दरमियाना सा. अच्छा ठीक है. कुवैत.
कोयत एक छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है। पैसा पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। अरे वाह, पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा पार्थ, चलते चलते हमें ये बताइए कि इज्जत, दौलत, शोहरत आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इज्जत हो तो दौलत भी आ जाती है और हर चीज़ आ जाती है। तो आदमी को अपना एक मेयार बनाकर चलना चाहिए। अच्छा पार्थ, आप पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले हैं और अभी आपने चंद ममालिक को अबूर कर लिया है और बाकी की तरफ आपको जाना है, तो ये जो इंस्पिरेशन है जिसने आपको जगा के रखा, ये जो आपको चला रही है, ये आजकल लोगों में नहीं पाई जाती। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारी यूथ को, लोगों को, कि कैसे अपने आप को जिंदा रखा जाए? मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि करगस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और, जिन्होंने अगर अपने अंदर ठान लिया, अगर ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे वालिद ने मुझे क्या दिया, अगर इन बातों में उलझे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया। हमारे साथ सामीन स्टूडियो में मौजूद थे पार्क और शीन, दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों निकले हैं दुनिया के सफ़र पर और हम सफ़र भी हैं और दुनिया के सफ़र पे भी निकले हैं। और यकीनन हमारी दुआ है कि इन लोगों को सेहत के साथ पूरा जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी करें अल्लाह ताला, और इनका सफ़र आसान से आसान तर होता चला जाए और उसके बाद ये फिर एक और नया टारगेट अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ जिसको वो अबूर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पार्क एंड शीन, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम, आज के मेहमान में इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते हम दोबारा से एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आज के हमारे मेहमान से आपको क्या सीखने को मिला। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं अगले हफ्ते तक के लिए। अभी आप सुन रहे थे खतवार प्रोग्राम आज के मेहमान। तरतीब और पेशकश निदा मिर्जा। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नश्र किया जाएगा। जनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आपकी मेज़बान निदा मिर्जा, साथी आंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और अबू बकर पायोली, और आज की हमारी मेहमान शख्सियतों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।